Welcome to Manaskriti Institute of Learning AMP Development. The youth are more alive than anyone, more idealistic than anyone, and more inspired than anyone. If the world was guided by the young, the world would be a better place to live. Because they are in a certain level of high energy compared to the other part of the humanity, it is just that every little thing that they do is little exaggerated. If something constructive has to happen in the world, it has to be by the youth. If something destructive has to happen in the world, it too has to be by the youth. Usually the older generation handle youth as some kind of problem that needs treatment. They don't need treatment. It is people who have gone away from life who need treatment. Those close to life just live. The youth is in a certain state of high energy, and if there is no inspiration or proper guidance, that energy can very easily turn negative. Our educative systems have become 100% informative. There is no inspiration. Without inspiration, no human being raises beyond the limitations in which he lives. When it's all information, you can get it from anywhere. You don't really have to listen to a teacher. A teacher is not the best means of transmission when it comes to pure information. A book is better, the internet is even better. Only if the teacher's role is to inspire people to learn and to create a thirst for knowledge, only then a teacher's role has something to give. If he's just trying to transmit information, the other means of transmission are better than a human being, because a human being can always misinterpret. Making the whole education system purely informational has caused enormous damage. The time of life when you're youthful, when you're capable of many things, unfortunately goes waste simply because the necessary inspiration is not there. If this dedication is shown by adults, the youth will do miraculous things. Only because such dedication is missing in the general population, the youth seem to be disoriented. They don't know what to do and they are doing their own things. Because everybody is working on short-term goals, the youth also work on short-term goals. One big thing that needs to happen with the youth and with everybody is that their identification with humanity should not be limited to just themselves. It should include a larger society and a larger world around them. Unfortunately, this is missing in education. Modern education is constantly training people to only think about themselves and nothing but themselves. The whole process of science is only about how to use everything for our comfort and well-being. This attitude has been deeply set with the process of modern education. As we are investing our time, resources and energies in transmitting informative knowledge, we have to invest a certain amount of time, energy and resources to inspire the youth. If this happens, then the world would become a truly beautiful place. Let's look at what exactly is personality development and why is it required. In today's lifestyle, we have forgotten to address the root cause of our day-to-day problems. As a result, we are unable to accomplish the things we desire, which over the period of time finds expression in various forms within us. Fear, anxiety, guilt, tension, lack of confidence, and many more forms. Today, the modern science is proving that any human being can function at its best only when the entire system is at ease. If your system is not at ease, medical science terms it as disease. Still, the question remains same. What is personality development? It's not just a motivation, nor a philosophy, neither morals or etiquette. It's a proper scientific steps, which one just takes in order to take charge of your life, so that your life happens the way you want it to happen. Right now it's happening accidentally. I want you to look at it. Isn't it so? Here in this session we address every single problems and get into the root cause of it. That's the place to work with. Here in this session, it's not just one-way communication. Here you actively participate, and all the issues are addressed. It's an interactive session, where every participants are satisfied and has acceptance towards every single points of discussion. This session is concluded by 3 days of practical exercise.
The complete session is for 7 days, theory, AMP, 3 days, practical. The session is incomplete without practical exercises. The practical exercises helps you in many ways. Concentration, mental clarity, emotional balance, energy level, inner peace, self-confidence. The exercises are designed in a very scientific way, which helps individual to blossom and function in one's fullest capability. Only then the best of you can find expression. Even right now, the way you are is just an expression of who you are. Just see, isn't it so? So if you want to change the way you are right now, who you are should be worked upon. These practical exercises has numerous other benefits as well. Try and experience our program. One thing is guaranteed, it will be a life-changing experience. Thank you. Good morning. I am Richa Samvari, student of BA First Year English Honours, Magad Mahila College. हमारे कॉलेज में एनएसएस ने बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन पे जो कैंप रखवाया था, उसमें सुभाष सर एडुटेनमेंट फाउंडेशन के जो सर हैं वो आए थे और उन्होंने हम लोगों को मेडिटेशन, योगिक एक्सरसाइज के बारे में बताया। उन्होंने हमें 5 रूल्स बताया था, जिसमें से एक रूल मैं बताना चाहूँगी, आई एम द मदर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये रूल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बताया गया था लाइक मदर मीन्स ये नहीं कि आप किंग हो, आपको रूल करना है। इट इज़ नॉट दैट। मदर मीन्स लाइक एक मदर जो अपने चाइल्ड को जैसे से केयर करती है, उनमें जो अपनापन होता है, वो हमें पूरे यूनिवर्स सारे पीपल के साथ वैसा ही रूल रखना चाहिए, वैसा ही बिहेवियर रखना चाहिए। एंड ये सेशन हमारा 7 डेज़ का था, बट मैं चाहूँगी मैं लेटर ऑन फर्दर इस सेशन को ज्वाइन करती रहूँ, और काफ़ी इम्पैक्टफुल था और मेरे लिए बेनिफिशियल था, तो इसलिए मैं और भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहूँगी। एंड सुभाष सर, यू आर डूइंग वेल बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर कॉलेज एंड गिविंग अस सच अ वंडरफुल एंड बेनिफिशियल लेसन। Myself, Kushbu Kumari. I am studying in BA Part 1, subject in Sociology. हमारे मगध महिला कॉलेज में सुभाष सर ने एनएसएस का क्या कैंप चलाया था, जिसमें क्या कि उसमें बहुत सारी चीज़ बताए गए थे, कि जैसे कि बाल विवाह के बारे में और दहेज प्रथा के बारे में। ये सब जानकर को बहुत ही अच्छा लगा, और जिसमें कि 7 दिन का कैंप था। 7 दिन के कैंप में हम लोगों को 5 रूल्स बताया गया था। इस रूल से हमको सबसे अच्छा लगा कि योगा का चीज़ बताया गया। योगा की चीज़ में किस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने दिमाग को मतलब कि कॉन्सेंट्रेट कर सकें, स्टडी एंड ऑल द थिंग्स। जैसे कि हम कुछ अगर जैसे कि स्टडी टाइम में हम कुछ और चीज़ सोचने लगते हैं, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, इस सब चीज़ के बारे में योगा में बताया गया था। ये सब चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा था। सुभाष सर ने ये कैंप 7 दिन का रखा था, और मैं चाहती हूँ कि ये कैंप आगे मतलब क्या कि फिर से रखा जाए, जिससे कि हम अपने अच्छे प्रोसेस हो सके। मेरे मतलब क्या कि जो चीज़ हम जानना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, इसी वजह से क्या हम चाहते हैं क्या कि ये कैंप फिर से लगे। थैंक यू। कॉलेज में एनएसएस का प्रोग्राम रखा गया था, उसके अंतर्गत बाल विवाह और इसका दहेज प्रथा के बारे में बताया गया था, उसको कैसे प्रिवेंट कर रोक सकते हैं। और उसमें कुछ स्टार्ट हुआ था जब ये कुछ बेनिफिशियल एक्सरसाइज से और मेडिटेशन के बारे में बताया गया था कि हम लोग कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स भी बताए गए थे जो हर किसी के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि था 5 रूल्स बताए गए थे, तो उसमें से था ऑल रूल्स आर माई रूल्स एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड आई एम द मदर ऑफ यूनिवर्स। इसमें से मुझे फर्स्ट रूल जो था ऑल रूल्स आर माई रूल्स, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि अगर हर कोई इस रूल को फॉलो करेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो सारे रूल्स को फॉलो करेंगे जो भी रूल बनता है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ फ़नी एक्सरसाइजेज भी हुए थे, वो सिर्फ फ़नी नहीं थे, उससे हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिला था। उससे ये बताया गया था कि जब हमें किसी को कुछ पास आउट करना होता है तो हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम दूसरे को करते हैं, फिर दूसरा तीसरे को, ये धीरे धीरे कम होते चला जाता है और ये अच्छी तरह से लास्ट पर्सन के पास नहीं पहुंच पाता है। बस यही सब था और बहुत अच्छा लगा, और मैं इसे अगर फिर से मुझे इसमें ज्वाइन करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। गुड
मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रज्ञा कश्यप, आई एम फ्रॉम सोशलॉजी डिपार्टमेंट। हमारे कॉलेज में एनएसएस का कैंप चला था जिसमें सुभाष सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने हमें एक तरह का एक्सरसाइज बताया जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ पे फोकस कैसे कर सकते हैं ये जाने। उन्होंने हमें 5 रूल्स भी बताए। फर्स्ट रूल इज़ ऑल रूल्स आर माई रूल। सेकेंड रूल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। थर्ड रूल, यू आर द मदर ऑफ होल यूनिवर्स। फोर्थ रूल, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट ब्रेन। फिफ्थ रूल, दिस मूवमेंट इज़ इम्यूटेबल। मुझे फर्स्ट रूल बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें था यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ऐसा हम लोग सोचें तो हम लोग किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। इस सेशन से बहुत सारे फ़ायदे हम लोगों को मिले। किसी चीज़ को फोकस कैसे करना है, ये 40 डेज़ का एक एक्सरसाइज है। इसको करके हम लोगों ने बहुत सारा बेनिफिट गेन किया और सुभाष सर से बहुत कुछ जानने को मिला। हम लोग आगे भी सर से जुड़े रहना चाहते हैं और इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। थैंक यू। हाय, मेरा नाम मेनका है। मैं मगध महिला कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरे कॉलेज में सुभाष सर आए थे जिन्होंने माइंड मैनेजमेंट और योगिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। उन्होंने डाइट के बारे में भी बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन किया। जैसे हम अगर अच्छा डाइट नहीं लेते हैं तो हम उसका प्रभाव हमारे मेंटल स्थिति पे भी पड़ता है। और अगर इन सारी बातों का हम अपने जीवन पे ध्यान रखें तो हमारा जीवन और आसान होगा और जिन प्रॉब्लम से हम पहले डील कर रहे थे वो शायद ख़त्म हो जाएंगे। और योगिक एक्सरसाइजेस के बारे में भी उन्होंने हमें छोटी छोटी बातें बताई जिसे हम पढ़ने से पहले और सुबह या शाम में कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथ और हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। सो थैंक यू। मेरा नाम ऋचा द्विवेदी है। मैं BA पार्ट 1 की छात्रा हूँ। जो NSS की तरफ से जो 7 डेज़ का जो कैंप लगा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये चलता ही रहे क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट हुए हम लोग के लिए। जैसे पहले हम लोग के शोल्डर पे या फिर कुछ भी दर्द होता था या फिर कुछ भी हम लोग नहीं सोच पाते थे अच्छे से कि क्या करना है नहीं करना है। ये सब माइंड हम लोग का इसी से ये एक्सरसाइज जो 7 डेज़ के जो करवाए थे सर वो बहुत अच्छा लगा और उसके चलते हम लोग का दिमाग थोड़ा काम किया और चाहते हैं कि आगे ही NSS ये ऐसा ही चलता रहे हमारे कॉलेज में आगे भी। दो ये जो बाकी हम लोग का वो भी ऐसा ही होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ पायल रानी फ्रॉम सोशलॉजी डिपार्टमेंट, BA फर्स्ट फ्रॉम मगध महिला कॉलेज। हमारे कॉलेज में NSS का 7 दिन का कैंप हुआ था जिसमें उसका मेन टॉपिक था दहेज प्रथा और बाल विवाह। उसमें हम लोग को सुभाष सर ने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। और सुभाष सर ने हम लोग को योगा के बारे में भी बताए थे कि हम लोग पढ़ाई में कैसे फोकस कर सकते हैं। वो हम लोग को 5 रूल बताए थे जिसमें से एक रूल मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और इस बात को मैं मानती हूँ कि अगर कुछ भी मेरे लाइफ में होता है उसका जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। और वो जितना भी बताया हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो सर जो भी बताए थे और मैं उसके लिए सुभाष सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने जो भी नॉलेज दिया मैं उनसे बहुत खुश हूँ और आगे भी उनका जो सेशन आने वाला है मैं उनको ज़रूर ज्वाइन करूँगी और उनसे जो भी सीखने को मिलेगा मैं सीखूँगी। गुड मॉर्निंग, आई एम सौम्या फ्रॉम सोशलॉजी डिपार्टमेंट, BA फर्स्ट ईयर। NSS का कोर्स हम लोग ने किया था 7 डेज़ का, जिसमें सुभाष झा सर जो एंटरटेनमेंट फाउंडेशन के चीफ हैं उन्होंने कुछ बातें बताई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं रिकमेंड करनी चाहूँगी आगे फर्दर और स्टूडेंट्स को कि ये क्लास सेशन अटेंड करें। फिर 5 रूल्स उन्होंने बताया था, ऑल रूल्स आर माई रूल्स। सेकेंड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, दिस मूवमेंट इज़ एविटेबल। देन ये सारी जितने भी पॉइंट्स थी 5 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, उनके एक्सरसाइज अच्छे लगे, उनके जितने भी जो भी उन्होंने बोला सारा अच्छा लगा। माय नेम इज़ पल्लवी कुमारी, मगध महिला कॉलेज और मैं BA पार्ट 1 की छात्रा हूँ। यहाँ सुभाष सर आए थे, 7 दिनों का कैंप लगा था NSS का, जिसमें सुभाष सर ने मेडिटेशन के बारे में बताया था। मेडिटेशन होता क्या है ये तो सबको पता ही है। हम लोग को मानसिक रूप से मतलब रिलैक्समेंट, मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं वो हम लोग मेडिटेशन करते हैं 5 से 10 मिनट का सर बोले थे करने के लिए। उसके साथ 5 रूल भी बताए थे
और उसके बाद हम लोग ने ये एक्सरसाइज किया भी था और इससे हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ क्योंकि हम लोग एज अ स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम का बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारे सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं माइंड, और जिससे हम लोगों ने ये किया और उसके बाद हम लोग को कुछ प्रोग्रेस हम लोग को बुझाया और सर ने कहा था कि 40 डेज़ आपको ये एक्सरसाइज करना है, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर का। थैंक यू सो मच सर।